Assalamu alaikum. Today we are going to start with the functions of plasma membrane, and in which we are going to talk about endocytosis and exocytosis. Both are relate with the movement of material within the cell and out of cell. When we are going to talk about the endocytosis is basically about the intake of material by enfolding the membrane by forming the vacuole. What does it mean making the vacuole? What does it mean enfolding of membrane? It's just about, like in the picture number one, you can see there here the cell, and the outermost boundary of the animal cell is a plasma membrane. Whenever the any solid or liquid material get in intact with the outer side of the plasma membrane, it make a vacuole inside the plasma membrane, and in this way the vacuole is engulfed inside the cell. So by forming the vacuole, any material will pass inside the cell. So endocytosis is basically have two types: phagocytosis and pinocytosis. In a phagocytosis, we are going to talk about the engulf of solid material, like intake solid material in the solid form. So also called as the eating process, like eating process and solid substances. So solid substance is also very important MCQs. To engulf any solid substance is known as phagocytosis. Phago means food से आपने इसको याद रखना है. Phagocytosis means intake of solid substances. And pino को पानी से याद रखेंगे, तो pinocytosis is engulf of liquid substances, or it's also known as drinking process. So phagocytosis is a eating process and pinocytosis is a drinking process. So endo means inside. When any vacuole intake material inside the cell, intake of material, either it is solid or either it is liquid, intake of material is known as endocytosis. If it is solid, it's known as phagocytosis. If it is liquid, it's known as pinocytosis. And other type of movement of material in the inside the cell is exocytosis. Exo means exit करना, बाहर की तरफ निकलना, बाहर जाना, exo. So it's just opposite to the endocytosis. So movement of material outside the cell is known as the endocytosis. It's the reverse of endocytosis, removal of material from the cell. So it's all about the functions of the plasma membrane. In this slide, we have teach about the endocytosis and exocytosis. Endocytosis is basically taking material by enfolding the membrane by forming the vacuole, as you can see in the picture. And phagocytosis and pinocytosis are the two types of endocytosis. In phagocytosis, it engulfs the solid material, and pinocytosis engulfs the liquid substances. And exocytosis is basically reverse of endocytosis, movement of material outside the cell, बाहर फेंकना, बाहर निकालना by forming the vacuole. सो मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया हुआ है कि वैक्यूल्स, जब अपने ऑर्गेनेली पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं एनिमल सेल में, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल सेल. सो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. टेम्परेरी क्यों होते हैं? बिकॉज वैक्यूल्स बनते हैं, एंडोसाइटोसिस होती है, और जब इन्होंने रिमूव करना होता है तो टेम्परेरी वैक्यूल्स बनते हैं, एक्सोसाइटोसिस हो जाती है. सो एंडो हो या एक्सोसाइटोसिस हो, वैक्यूल्स बनेंगे, मूवमेंट ऑफ मटीरियल पार्सल की तरह मूव करने के लिए, लाइक पार्सल आपके घर पे आता है, कोई किसी ना किसी एनवेलप के अंदर वो होता है. तो ये जस्ट पैक करते हैं किसी मटेरियल को. अगर उन्होंने अंदर लेके आना तभी वो पैक करते हैं, बाहर लेके जाना तभी पैक करते हैं. तो मैम जब इसने अंदर आना है तो इसको पैक करके क्यों लेके आते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं अंदर आ जाता, वैक्यूल के अंदर क्यों ही रहता है? तो देखिए बेटा, अगर कोई वायरस है या बैक्टीरिया अगर वो सेल के अंदर आ रहा है और वो पैक नहीं है, लाइक कोई पॉइजन भी तो हो सकती है ना, लाइक लाइसोसोम्स उसको स्प्रेड कर सकते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं. अगर बैक्टीरिया है या कोई पॉइजन है जो पूरे साइटोप्लाज्म के कंटेंट को चेंज कर सकती है, उनकी पीएच डिफर कर सकती है, उसको पॉइजन कर सकती है. सो साइटोप्लाज्म पॉइजनस ना हो जाए, इसको बचाने के लिए बेटर होता है कि वो वैक्यूल फॉर्म में आए, उनकी डाइजेशन हो, डाइजेशन होने के बाद उसको स्प्लिट किया जाता है, और स्प्लिटिंग करने के बाद उनको तोड़ फोड़ के छोटे छोटे पीसेस में करके उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है. सेल से बाहर भी फेंक सकते हैं या सेल के अंदर भी खत्म हो जाते हैं. और इट्स नॉट अबाउट ओनली कि ये फूड, ये क्या कहते हैं, पॉइजन होगी, ये बैक्टीरिया होंगे इसमें, बल्कि आपकी फूड भी हो सकती है. प्लांट जब ईटिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं तो वो एक आपकी न्यूट्रिशन और फूड को भी इसी प्रोसेस के थ्रू लेते हैं. ठीक है. सो फर्दर एक पिक्चर्स है यहाँ पे सामने आपके पास, और इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस की अगर टू टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. लाइक फैगो एंड phagocytosis is just about the solid particles.
लाइक इन द पिक्चर अगर आप देखिए तो ये एक सॉलिड पार्टिकल है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंगल्फ करने के लिए एक वैक्यूल फॉर्म में अपने आप को चेंज कर रही है। जब ये वैक्यूल बन जाता है तो इनर साइड में आ जाते हैं और ये फूड वैक्यूल बन गया है, ठीक है। इसे फेगोसोम कहते हैं इस वैक्यूल को अब, ठीक है। अब ये पहले वैक्यूल था, अब ये फेगोसोम बन गया। देन नाउ इट्स नोन एज अ फेगोसाइटोसिस। सो उसी तरह से दूसरी फॉर्म में देखिए पिनोसाइटोसिस, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में से जो भी सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल, ये ब्लू कलर के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो इंगल्फ करता है छोटे छोटे वैक्यूल्स बनाता है, और ये वेसिकल जो है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया, इसको पिनोसाइटोसिस प्रोसेस हो गया। एक्सोसाइटोसिस ऑन द सेम हैंड इट्स जस्ट अ मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल। लाइक अगर बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर कोई मटेरियल है और जिसको रिमूव करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए देख रहे हो ये सेल की इनर साइड है, इनर साइड में ही सेल अपनी इनर साइड पे इन्वेजिनेशन बनाता है, ठीक है। यहाँ पे भी तो इनर साइड पे इन्वेजिनेशन बनती है ना, तो इसमें इनर साइड पे इन्वेजिनेशन बनती है, वो मटेरियल पैक किया जाता है। लाइक कोई मटेरियल ऐसा है जो उसको सेल से बाय एक्सपोर्ट करना है, लाइक गोल्जी बॉडीज के मटेरियल भी तो पैक होते हैं ना, गोल्जी बॉडी सिक्रीशंस होती हैं आउटसाइड द सेल। तो ये सिक्रीशंस या कोई प्रोटीन्स है जिनको सेल से बाहर रिमूव करना है, या सेल के अंदर अगर कोई ऐसी प्रोटीन्स बन रही हैं तो उनको भी सेल के बाहर रिमूव करना है, या कोई ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जिनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है सेल से बाहर, तो या टॉक्सिक निकालना या कोई प्रोटीन्स वगैरह या कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रिपेयर किया इनको बॉडी से बाहर, सेल की बॉडी से बाहर बाहर निकालना है, तो वैक्यूल्स बनते हैं। सो दीज वैक्यूल्स आर टेम्परेरी, और इनके फॉर्मेशन के साथ ही देखिए यहाँ तक वो आके इंटेक्ट होते हैं और मटेरियल बाहर की तरफ मूव कर जाता है, और ये दोबारा ये वैक्यूल इसी मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाता है। This is all about the endocytosis and exocytosis. Further, we are going to talk about मोर पिक्चर्स लाइक एंडोसाइटोसिस पिक्चर एक कुछ ये भी दी हुई है जिसमें हमने वैक्यूल फॉर्मेशन देखी हुई है। फेगोसाइटोसिस बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर आपको मैं बात बताऊं तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो है डब्ल्यूबीसी, वो बैक्टीरिया को भी इंगल्फ करते हैं, और इनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए और बैक्टीरिया को इंगल्फ करने के लिए भी वो यही प्रोसेस करते हैं। और बैक्टीरिया के बॉडी के बाहर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फील करती है हमारी बॉडी, और उसके बाद उसको इंगल्फ कर लिया जाता है। पिनोसाइटोसिस में लिक्विड हो गया, और उसके बाद फर्दर हम देखें तो ये भी एक पिक्चर जो है शो कर रही है, यानी आपकी लेवल पे अगर बात की जाए तो इतना ही काफी है। अगर एफएससी लेवल से अपर साइड पे जाएंगे तो फिर हम रिसेप्टर मेडिएट एंडोसाइटोसिस पे आएंगे। फिलहाल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अगर मटेरियल इनटेक हो रहा है तो एंडोसाइटोसिस है, अगर मटेरियल आउटसाइड रिमूव किया जा रहा है, एरो आप देख सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे ये एक्सोसाइटोसिस है। बाहर वाला एनवायरनमेंट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एंड इनर साइड पर आप देखें तो ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से मटेरियल अगर बाहर निकाल रहे हैं तो एक्सो है, और साइटोप्लाज्म के अंदर बाहर से अंदर आ रहा है तो एंडो है। और एंडो की आगे कितनी टाइप्स है, टू है, पिनो एंड फेगो। सो बोर्ड में ये क्वेश्चंस आप लोगों को आ जाते होते हैं। एग्जांपल्स आपकी बुक में, एफएससी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो न्यूरॉन सेल्स दिए हुए हैं। द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स, वो इसी प्रोसेस के थ्रू होती है। सो फॉर वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट टू कीप कोऑर्डिनेशन। लाइक अगर बॉडी में न्यूरॉन्स क्या होती है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 17 में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और न्यूरॉन्स जो है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेजेस कैसे कन्वे होते हैं, अगर आप ये देख सकते हो, ये एक सेल बॉडी है और इसके साथ ये डेंड्राइट्स लगे होते हैं, नजर आ रहे हैं आपको डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। अब आप देख रहे हो एक डेंड्राइट दूसरे के एक्सॉन के साथ इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है जहां पे ऑरेंज स्पॉट है, येलो स्पॉट है, ग्रीन स्पॉट है। अब इसकी इंफॉर्मेशन दूसरी वाली न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन किस तरह से जाती है, यानी एक सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से होते हुए दूसरे के एक्सॉन में किस तरह से ट्रांसमिट होगी, हाउ इज इट पॉसिबल। सो आप इसको अगर हम जूम करके देखें, यहाँ पे उन्होंने दो कलर की न्यूरॉन्स बताई हुई है, एक उन्होंने ब्लू बना दी है नीचे और एक पिंक बनाई हुई है। इसी तरह से अगर आप ऊपर देखो तो पर्पल है और पिंक है, उन दोनों को डिफरेंट कलर्स देने की रीजन ये है कि आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे टू डिफरेंट न्यूरॉन्स है। लाइक अगर ब्लू न्यूरॉन से मैसेजेस हमने आगे कन्वे करना है टुवर्ड पिंक, तो ब्लू न्यूरॉन्स में से जो मैसेजेस हैं वो एक्सोसाइटोसिस होके बाहर निकलेंगे, कुछ केमिकल्स जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, और आगे वाली जो पिंक न्यूरॉन है उसको अपटेक करती है, ठीक है। उसको अपटेक करेगी तो उसमें एंडोसाइटोसिस हो रहा होगा। तो एट द सेम टाइम एक न्यूरॉन एक्सोसाइटोसिस कर रही है, मैसेज बाहर निकाल रही है, तो दूसरी उसको अपटेक कर रही है। तो ये न्यूरॉन्स में ये दोनों यानी बिल्कुल टच नहीं करती है कभी भी, यानी ये जो आपके पास पिंक एंड ब्लू न्यूरॉन्स आ रही है, इन दोनों में स्पेस होती है जिसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। सो हम इसको भी चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। लेकिन ये जो स्पेस है ये आपस में जुड़ी नहीं होती, ये अपनी स्पेस में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिमूव करती है और पिंक वन इसको यहीं से अपटेक कर लेती है। सो इट्स वेरी इजी। ये एग्जांपल्स देने के लिए हमें न्यूरॉन्स एग्जांपल दिए कि न्यूरॉन्स के अंदर एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के लिए ही जो सेल मेम्ब्रेन है वो ट्रांसमिट करते हैं नर्व इंपल्स, अदरवाइज एक न्यूरॉन में जो मैसेज रहेगा वो अगली वाली में कन्वे नहीं होगा। सो इसी के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशंस रहती है।
सो नव इम्पल्स आई थिंक इसी तरह से समझ आ गया होगा आपको कि लाइक ये मैसेजेस कन्वे किस तरह से हो रहे हैं, एक मैसेज दूसरे मैसेज न्यूरॉन में किस तरह से मूव कर रहा होता है, और इसके थ्रू पूरी बॉडी जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो मैसेजेस कन्वे हो जाते हैं। लाइक हमारे हाथ पे कोई पेन है तो हमारी ब्रेन में मैसेजेस कैसे पहुंच जाता है एकदम, तो यही होता है, एक से न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करने के लिए एक्सोसाइटोसिस, और अदर वन अपटेक करने के लिए उसे एंडोसाइटोसिस के थ्रू मैसेजेस कन्वे होते हैं। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में आप लोगों को आ सकते हैं, एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्विंग इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल, एंड फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, सोलिडोसाइटोसिस, या बोथ ए एंड बी। आपको इसमें से क्या करेक्ट आंसर लगता है? एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्विंग द इंजेक्शन ऑफ सॉलिड, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉलिड, देन इट इज फेगोसाइटोसिस द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे सॉलिडोसाइट्स लिखा हुआ है ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए। सो ए इज अ करेक्ट आंसर। Percentage of lipid in a plasma membrane is 60 to 40, 60 to 80, 20 to 40, 1% to 5%. So the right answer is 20 to 40, C option. Cell membrane has 60% to 80%. Which one of these? Lipid, protein, cholesterol, carbohydrates. So right answer is a protein, because lipids तो 20 to 40% है, protein 60 to 80% है, cholesterol और carbohydrates की percentage book में given नहीं है। So इन दोनों के लिए word use किया बस in a small quantity. Cholesterol and carbohydrates are present in a smaller quantity. So movement of water across the membrane is called as diffusion, osmosis, active transport, या phagocytosis. So whenever we are going to talk about the water, so it's directly related with the osmosis. So water है तो osmosis का word आपने directly उस पे टिक कर देना है। movement of water across the membrane is osmosis. diffusion हम water के लिए use नहीं करते, diffusion हम gases के लिए use करते हैं, और water को movement के लिए हमें किसी भी energy की जरूरत नहीं पड़ती, so ये active transport तो नहीं हो सकती। और phagocytosis में तो solid material को intake किया जाता है, तो right answer is B. So thank you so much. This is all about the question and their answers. If you have any confusion, please let me know. Thank you so much.